Hello everybody, welcome back to English classes by Mukhtar sir. Yesterday we talked about conditional sentence and I provided you people introductory information about conditional sentences. But I'm gonna repeat the same information since in that previous lecture there was no audio clarity, I was not audible enough, hence I'm gonna repeat. So let's define a conditional sentence first. What is a conditional sentence? As I said yesterday, a conditional sentence is a sentence. A conditional sentence is a sentence that consists of two clauses. The conditional clause that consists of two clauses. The conditional clause, also known as prothesis, and the consequent clause, also known as the resultant clause. Hence, a conditional sentence happens to be a sentence that comprises of or consists of two clauses. The conditional clause known as the prothesis, and the consequent clause known as the resultant clause. As a result, we come to the conclusion, we come to know the fact that a conditional sentence contains two clauses, the conditional clause and the resultant clause. While and on both the clauses do their own job. The conditional clause does its own job, and on the other hand, the consequent, or thus called the resultant clause, does its own job. Both the clauses do two different jobs, but taken as a whole, these two clauses make up a conditional sentence. The conditional clause and the resultant clause, a sentence that comprises of these two specific types of clauses, the conditional clause and the resultant clause. As such a sentence is called a conditional sentence. गर्ज ये कि एक जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक कंडीशनल सेंटेंस दो क्लासेस का बना होता है, जिसमें एक कंडीशनल क्लास होता है जिसे प्रोथेसिस भी कहते हैं, और यहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंट क्लास यानी रिजल्टेंट क्लास भी होता है, इसे एब्डोसिस भी कहते हैं। गर्ज ये कि एक कंडीशनल क्लास और रिजल्टेंट क्लास, जब ये दो क्लास मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं तो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को वी कॉल कंडीशनल सेंटेंस, उसी को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? ये है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एसेंशियली दो क्लासेस होंगे। कौन से दो क्लासेस? दो स्पेसिफिक क्लासेस। वो कौन से हैं? दो मखसूस क्लासेस। वो है एक कंडीशनल क्लास और उसके बाद आने वाला एक रिजल्टेंट क्लास। हालांकि ये जो दो क्लास है एक सेंटेंस में, ये दोनों अपनी अपनी फंक्शन करते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। कंडीशनल क्लास का अपना काम है, रिजल्टेंट क्लास का अपना काम है, लेकिन दोनों क्लासेस मिलके जो सेंटेंस बनाते हैं, दैट सेंटेंस वी कॉल ए कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को ही कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ख्याल रहे, ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन में भी मैंने कहा था, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि ऑडियो क्लैरिटी नहीं थी तो मैं रिपीट कर रहा हूं इस इंफॉर्मेशन को। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? ए कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एसेंशियली कंसिस्ट्स ऑफ और कंप्राइजेस ऑफ टू क्लॉजेस. The conditional clause, also known as prothesis, and the consequent clause, also known as the resultant clause. तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एसेंशियली दो क्लास होंगे, एक कंडीशनल क्लास होगा और एक रिजल्टेंट क्लास होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस कैसा होता है, लेट्स सी इफ it rains, I will not go to school. In this very particular sentence, which reads like, if it rains, I will not go to school. We have got two clauses, हमारे पास दो clauses हैं. If it rains happens to be the first clause, and I will not go to school happens to be the second clause. As a result, we have got two clauses, and these two clauses as a whole make up a sentence. ये दोनों clauses मिलके बनाते हैं एक sentence. अब हम देखेंगे क्या जो हमने कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन में लिखा था, यहाँ पे वैसा है।
एक क्लास जो हमारे पास यहाँ पे है, इफ इट रेन्स, ये हमारा कंडीशनल क्लास है, कंडीशनल क्लास, दिस इज द कंडीशनल क्लास। मैं आगे बोलूंगा ये कंडीशनल क्लास क्यों है। फाइन, नेक्स्ट, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये हमारा कॉन्सिक्वेंट क्लास या रिजल्टेंट क्लास है। तो हमारे पास दो क्लास है, एक कंडीशनल क्लास, एक रिजल्टेंट क्लास है। ये दो क्लासेस अगर एक सेंटेंस में है, एक कंडीशनल क्लास भी, एक कॉन्सिक्वेंट क्लास भी, ये दो क्लासेस मिलके जो सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। मींस अब जो ये पूरा सेंटेंस हमारे पास है जो इन दो क्लासेस का बना है, कंडीशनल क्लास और रिजल्टेंट क्लास का, इफ इट रेन्स, आई विल नॉट गो टू स्कूल, दिस इज द होल मेक्स अप ए कंडीशनल सेंटेंस। ऐसा ही होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, यही है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन दो मखसूस क्लासेस की कि कंडीशनल क्लास कौन सा क्लास होता है, रिजल्टेंट क्लास कौन सा क्लास होता है, यानी कंडीशनल क्लास किसे कहता है, रिजल्टेंट क्लास किसे कहते हैं। ख्याल रहे, इसी एग्जाम्पल को अगर हम गौर से देखेंगे, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, फाइन, नेक्स्ट, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कब, ये इंपैक्ट इसका, ये रिजल्ट कब हो सकता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शर्त क्या है, शर्त है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। तो अगर बारिश होती है, ये वाला जो क्लास है इफ इट रेन्स, ये हमारे सामने एक शर्त रखता है, कंडीशन रखता है, जिसका ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, जिस शर्त का ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। ये जो शर्त है इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो, अगर बारिश होती है तो क्या होगा, क्या होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये रिजल्ट है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। This very particular class, I will not go to school, I will not go to school, gives out or shows the result. This shows the result. This shows the consequence. ये हमें रिजल्ट बोलता है of what, of this condition, इस कंडीशन का being fulfilled। अगर ये कंडीशन पूरी होती है, अगर बारिश होती है तो रिजल्ट ये होगा। Hence ये जो क्लास यहाँ पे हमारे पास है, जो if से स्टार्ट हुआ है, ये कंडीशन हमारे सामने रखता है। This puts forth the condition. Since this class puts forth a condition, क्योंकि ये हमारे सामने एक कंडीशन रखता है, puts forth a condition, hence this particular class, ये जो क्लास है is called conditional class। इसी क्लास को हम कंडीशनल क्लास कहते हैं, जो हमारे सामने कंडीशन रखता है, शर्त को हमारे सामने रखता है। शर्त यह है कि अगर बारिश हो, और ये जो क्लास है आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये बोलता है कि अगर ये शर्त पूरी हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो, तो रिजल्ट क्या होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, इंपैक्ट ये होगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये रिजल्ट दिखाता है, एज ए रिजल्ट हम इसे रिजल्टेंट क्लास कहते हैं, रिजल्टेंट क्लास या कंसिक्वेंट क्लास कहते हैं। सो यहां पे हमारे पास दो क्लास हैं, एक कंडीशनल क्लास और एक रिजल्टेंट क्लास। कंडीशनल क्लास पुट्स फॉर द कंडीशन एंड द रिजल्टेंट क्लास गिव्स आउट द रिजल्ट। कंडीशनल क्लास कंडीशन हमारे सामने रखता है और रिजल्टेंट क्लास हमें बोलता है रिजल्ट क्या होगा उस कंडीशन का। अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इनकी टाइप्स हैं, वो हम आगे बात करेंगे कि ये वाला जो कंडीशनल क्लास है, यहां पे कैसी बात को, कैसी सिचुएशन को रखा गया है, इसका जो रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट है, वो कंडीशनल्स की टाइप्स में हम पढ़ेंगे, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स में। फिलहाल कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो दो क्लासेस का बना होगा, एक कंडीशनल क्लास का और एक रिजल्टेंट क्लास का। कंडीशनल क्लास किसे कहते हैं, जो हमारे सामने कंडीशन रखे। रिजल्टेंट क्लास जो उस कंडीशन का हमें रिजल्ट बताए, पॉसिबल रिजल्ट बताए। तो ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस यूजुअली एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रुथ, यूजुअली एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रुथ। ये एक्सप्रेस करता है एक सच को, एक हकीकत को। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ये जनरल ट्रुथ के बारे में, जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है जिसका एक लाइकली या मोस्ट लाइकली रिजल्ट होता है, या ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है जिसका लाइकली या अनलाइकली रिजल्ट होता है। खैर, लाइकली अनलाइकली ये जो आगे बातें हैं क्लियर हो जाएंगी जब हम टाइप्स कंडीशनल सेंटेंसेस के लेंगे, तो वन बाय वन ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जनरली मैं यहां पे कह रहा हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। ओके फाइन, ये
जनरल ट्रुथ क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, इनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में बात करने के लिए द प्राइमरी थिंग दैट आई विल हैव टू लेट यू पीपल नो इज द फैक्ट दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं, इज ऑलरेडी टोल्ड, जैसा मैंने पहले भी कहा है। द वेरी फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल। पहली टाइप को जीरो कंडीशनल कहते हैं। जीरो कंडीशनल, जो पहली टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसे जीरो कंडीशनल कहते हैं। आल्सो नोन एज जनरल कंडीशनल, इसे जनरल कंडीशनल भी कहता है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इज जीरो कंडीशनल, आल्सो नोन एज जनरल कंडीशनल। द सेकेंड वन इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर is the first conditional, also known as present conditional, and the third one is second conditional, also known as past conditional, and the third one is fourth conditional, also known as perfect conditional। तो ये 4 टाइप्स है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस की। इन 4 टाइप्स में से टुडे आई विल बी टेकिंग अप जीरो कंडीशनल। हम बात करेंगे जीरो कंडीशनल की। जब हम जीरो कंडीशनल की बात करेंगे, जो अभी मैं जनरल ट्रुथ की बात कर रहा था, ऐसा फैक्टर जो ट्रुथ हो या हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की पहली टाइप के बारे में बात करेंगे। For example, let's consider an example. If you heat ice, comma, if you heat ice, अगर आप आइस को हीट करोगे, ओके फाइन। ये एक ऐसा क्लाज है जो हमारे सामने शर्त रखता है। ये शर्त रखने वाला जो क्लाज है, ख्याल रहे ये इफ से स्टार्ट हुआ है। ये जो कंडीशनल क्लाज है दैट पुट्स फॉर द कंडीशन हैज बिगन विद इफ, ये इफ से स्टार्ट हुआ है। एज अ रिजल्ट ऐसे क्लाज को हम इफ क्लाज भी कहते हैं। इफ क्लाज, रिमेंबर, इज ऑल्सो नोन एज इफ क्लाज। इसे हम इफ क्लाज भी कहते हैं, कंडीशनल क्लाज को। ये जो कंडीशनल क्लाज है यहां पे हैज बिगन विद इफ से स्टार्ट हुआ है। नंबर 1, दिस इज द कंडीशनल क्लाज, दिस पुट्स फॉर द कंडीशन। कंडीशन क्या है? इफ यू हीट आइस, इफ यू विल डू दिस जॉब ऑफ हीटिंग द आइस, अगर आप ये काम करोगे, कौन सा काम? आइस को हीट करने का। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो इस सेंटेंस का है रीड्स लाइक दिस, इट मेल्ट्स। अगर आप आइस को हीट करोगे, इट मेल्ट्स, वो पिघलता है, ये पिघलता है, यानी आइस को हीट करेंगे, आप हीट करोगे तो इट मेल्ट्स, आइस पिघलता है। फाइन, ये जो बात यहां पे कही गई है, इट मेल्ट्स, दिस इज द जनरल ट्रुथ। दिस इज द जनरल ट्रुथ। ये है ट्रुथ, ये सच है, ये हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दैट वी कैन नॉट डिनाई, दैट वी कैन नॉट इवन डाउट अबाउट, जिसके बारे में हम शक भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूंगा इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करोगे तो उसके बाद क्या होगा? हमारे जहन में लाजमी आता है आइस मेल्ट होगा। क्या कोई शख्स इस बात से इनकार कर सकता है? अगर आप आइस को हीट करोगे ये मेल्ट नहीं होगा। क्या कोई कहेगा ये मेल्ट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे जो आउटकम है, ख्याल रहे, ये तो कंडीशनल क्लास है, पुट्स फॉर द कंडीशन। सेकंड, ये हमारा कंसिक्वेंट क्लास है या रिजल्टेंट क्लास, ये हमें रिजल्ट बोलता है ऑफ दिस कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड, कि अगर ये कंडीशन पूरी हो, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा इट मेल्ट्स, आइस पिघलता है, आइस पिघलता है। क्या इस बात का कोई इनकार कर सकता है? नो, नहीं। तो हम जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसी चीज के बारे में, ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरली ट्रू है, जिसे हम सब मानते हैं, जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। तो यहां पे जो हमारा कंडीशनल क्लास है, कंडीशनल क्लास, ख्याल रहे, अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशनल क्लास का टेंस देखोगे, TENSE, टेंस, यानी वर्ब की फॉर्म कौन सी है, वर्ब की फॉर्म यानी वर्ब टेंस कौन सा है? टेंस अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस से कैसे पता चला? वर्ब फर्स्ट फॉर्म हैज बीन यूज्ड, वर्ब की पहली फॉर्म यूज की गई है, नो अदर ऑक्सिलरीज, कोई और ऑक्सिलरी उसके साथ नहीं आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये V1 यहां पे इस्तेमाल हुआ है कंडीशनल क्लास में। सेकंड, जो इसका रिजल्टेंट क्लास है, आप यहां पे देखो, यहां पे मेल्ट्स, अगेन V1 है, यानी रिजल्टेंट क्लास का टेंस भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर आपसे ये कहा जाता है इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करोगे, इट मेल्ट्स, आइस पिघलता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं आइस के पिघलने के, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू नो। कितने चांसेस हैं आइस के पिघलने के? मैं यहां पे बोलूंगा कि देयर आर 100% चांसेस, 100% चांसेस हैं। 100 से भी ऊपर लेंगे 110% फॉर एग्जाम्पल। मैं 110% कब कहता हूं? जब ये रिजल्ट गारंटीड होगा, जब मुझे पूरा यकीन है कि ये होगा, ये गारंटीड रिजल्ट है, तो मैंने कहा 110% चांसेस है इस रिजल्ट के होने के। ख्याल है तो जो जीरो कंडीशनल है ये बिल्कुल ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जहां पे कंडीशनल क्लॉज ऐसी कंडीशन रखे कि उसका जो रिजल्ट हो वो एक जनरल ट्रुथ हो, वो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट हो, यानी उसके होने के चांसेस कितने हो, प्रोबेबिलिटी कितनी हो, द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट। यहां पे जो होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मीन्स 100% है। दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी शोन, सबसे ज्यादा चांसेस है इसके होने के, 100% चांसेस है इसके होने के, तो हम कहते हैं ये एक जनरल ट्रुथ है, ऐसा ही होगा, इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता है। तो जीरो कंडीशनल बिल्कुल ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंस को कहते हैं जहां पे कंडीशनल क्लॉज एक ऐसे कंडीशन रखेगा कि उसका रिजल्ट जनरल ट्रुथ होगा, यानी उसके होने के चांसेस कितने होंगे, 100%। तो यहां पे जो रिजल्ट है हम इसे मोस्ट लाइकली कहते हैं, मोस्ट लाइकली रिजल्ट, मोस्ट लाइकली, यानी हर हाल में ये रिजल्ट होना ही होना है। इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल, अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया जाता है ये रिजल्ट होना ही होना है, ये आउटकम आना ही आना है, इसका हम डिनाइल नहीं कर सकते। और ये जो दिखाता है कि कंडीशन अगर फुलफिल हो उसका रिजल्ट मोस्ट लाइकली है, ये दिखाने वाले कंडीशनल सेंटेंस को ही कहते हैं जीरो कंडीशनल। ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंस को जीरो कंडीशनल कहते हैं। दिस इज द जीरो कंडीशनल फॉर यू पीपल। I will repeat some information about it. I am not yet done. इसके बारे में फिर बात करेंगे। Let's take another example. If you smoke, comma, you suffer. अगर आप सिगरेट पीते हो, टबाको एक्सेट्रा पीते हो, इफ यू स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हो, यू सफर, आप सफर हो जाते हो। क्या यहां पे जो कंडीशन रखी गई है, शर्त रखी गई है कि अगर आप स्मोक करते हो उसका जो रिजल्ट है क्या ये मोस्ट लाइकली है, क्या ये 100% होने वाला है, या 110% यानी गारंटीड ये होने वाला है? हाँ, ये गारंटीड होने वाला है। इफ यू स्मोक, अगर आप स्मोक करते हो, यू सफर, आप सफर होते हो, ये 100% होने वाला है। तो यहां पे हम एक जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं जो सच है कि अगर आप स्मोक करते हो आप सफर होते हो, ये हम सब मानते हैं। दिस इज अ जनरल ट्रुथ। ये जनरल ट्रुथ का एक्सप्रेस करता है, ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है ये जनरल ट्रुथ का एक्सप्रेस करता है। एज ए रिजल्ट हम ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को जीरो कंडीशनल कहते हैं, जीरो कंडीशनल। यहां पे जो रिजल्ट है कंडीशनल क्लास का, कंडीशनल क्लास का जो रिजल्ट है यानी जो रिजल्टेंट क्लास है, यहां पे जो रिजल्ट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। यहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 100%, यानी ये रिजल्ट मोस्ट लाइकली है। और मोस्ट लाइकली रिजल्ट दिखाने वाले कंडीशनल सेंटेंस को, जहां पे कंडीशनल क्लास का जो रिजल्टेंट क्लास होगा, जो रिजल्ट दिखाता होगा, वो रिजल्ट अगर मोस्ट लाइकली हो यानी 100% होने वाला हो, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल और जनरल कंडीशनल। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को जीरो कंडीशनल या जनरल कंडीशनल कहा जाता है। सो दिस इज द जीरो कंडीशनल और द जनरल कंडीशनल। हमने देखा कि क्यों है ये जीरो कंडीशनल और क्यों हम इसे जनरल कंडीशनल कहते हैं। क्योंकि यहां पे जो कंडीशन रखी जाती है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है मोस्ट लाइकली, या वो एक ट्रुथ होता है, वो एक ट्रुथ, एक फैक्ट होता है। ओके फाइन। नाउ अब इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम इन दोनों क्लासेस की, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस दो क्लासेस का बनता है, कंडीशनल क्लास का प्लस रिजल्टेंट क्लास का। कंडीशनल क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, इट्स इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स।
कॉमा। तो कंडीशनल क्लास जो होगा जीरो कंडीशनल में वो किस किस एलिमेंट का बना होगा, किस किस पार्ट का बना होगा। यहां पे एक इफ होगा, इफ के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 होगा और उसके बाद अदर वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, जितने हो उतने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद कौन कौन से वर्ड आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स में ऐड होने दो एडवर्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this is the structure of the conditional class. It's if plus subject plus V1 plus other words. And the structure of the resultant class is subject plus V1. रिजल्टेंट क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजल्टेंट क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, प्लस अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। अदर वर्ड्स का होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V1 के बाद आप OW अदर वर्ड्स लिख सकते हो या फुल स्टॉप डालो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसेंशियल एलिमेंट्स रिजल्टेंट क्लास के क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1। अब जो अहम बात है जानने के लिए वो है, यहां पे भी है सब्जेक्ट प्लस V1, यहां पे भी है सब्जेक्ट प्लस V1। ये जो V1 है ये बनाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। तो यहां पे भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। गर्ज ये कि जो जीरो कंडीशनल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है द कंडीशनल क्लास हैपेंस टू बी or needs to be, I can say needs to be in present simple tense, and the resultant class is always in present simple tense। resultant class भी हमेशा होता है present simple tense में। तो यहाँ पे दोनों classes, the conditional class and the resultant class are in present indefinite tense। किस tense में है, present indefinite tense में। conditional class भी present indefinite tense में, resultant class भी present indefinite tense में। जब जब आपके पास ऐसा होगा कि आपके दोनों क्लासेस कंडीशनल और रिजल्टेंट क्लास दोनों क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तब तक हम देख के बताएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर देख के, कि ये जीरो कंडीशनल है। दिस इज द जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल है। उसके बाद अगर हम मीनिंग के लिहाज से देखें कि क्या जो बाकी हमारी लीगैलिटीज हैं वो बराबर होती है, यानी बाकी जो हमने बातें कही क्या वो सारी बराबर फिट होती हैं, क्या ये एक कंडीशन रखता है, एक ऐसी कंडीशन जिसका रिजल्ट जनरल ट्रुथ है, जिसका रिजल्ट मोस्ट लाइकली है, यानी जिसका रिजल्ट गारंटीड है, हर हाल में होने वाला है। अगर हाँ है तो ये जीरो कंडीशनल है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हमारे दोनों क्लासेस कंडीशनल क्लास और रिजल्टेंट क्लास यानी प्रोटोसिस एंड अब्डोसिस अगर दोनों हमारे रहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो दिस इज द जीरो कंडीशनल, ये हमारा जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशनल की तो हमने बात की कि यहां पे कंडीशनल क्लास एक ऐसी कंडीशन रखता है द रिजल्ट ऑफ विच, जिसका जो रिजल्ट होता है हैपेंस टू बी द मोस्ट लाइकली वन, जिसका रिजल्ट मोस्ट लाइकली होता है, आर द गारंटीड वन, या गारंटीड होता है। एक और एग्जांपल में इसको लिखूंगा, फॉर एग्जांपल इफ यू बॉइल वाटर, if you heat water, अब हम सामने अदर वर्ड्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हीट वाटर टू अ सर्टेन डिग्री, एक मखसूस डिग्री तक, जो आप साइंस में पढ़ते हो कि इस डिग्री तक हीट करेंगे तो होता है। खैर मैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। इफ यू हीट वाटर कमा इट बॉइल्स। फिलहाल आप स्ट्रक्चर देखो इन दो क्लासेस का, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, प्रेजेंट सिंपल, जीरो कंडीशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब मीनिंग बाकी लीगैलिटीज देखेंगे। इफ यू हीट वाटर पुट्स फॉर द कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने रखता है द रिजल्ट ऑफ विच हैपेंस टू बी अ जनरल ट्रुथ, ये एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने रखता है जिसका रिजल्ट ट्रू है, सच है। ये बात जो यहाँ पे लिखी गई है ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है जिसकी हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट दूसरे अल्फाज में यहाँ पे कंडीशनल क्लास ऐसी कंडीशन रखता है इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को हीट करोगे, पानी उबलता है, कितने चांसेस हैं अगर आप पानी को हीट करोगे पानी के उबलने के, कितने चांसेस हैं, 110%। 110% मीन्स गारंटीड रिजल्ट है, हर हाल में यह होगा, किसी भी कीमत पे यह होगा। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को जीरो कंडीशनल कहता है। दिस इज द जीरो कंडीशनल, यह है जीरो कंडीशनल। अब क्या है कि आपके एग्जाम में हाउ आर यू सपोज्ड, कैसे आपसे फर्ज किया जाता है टू टेक अप दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक इन योर एग्जाम्स, कि आप कैसे फेस करोगे इस टॉपिक को आपके एग्जाम में।
कि किस शेप में, इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एक सवाल पूछा जा सकता है। लेट मी टेल यू, जीरो कंडीशनल की ही बात करेंगे। मैं आपको फेमिलराइज करा रहा हूं, अवेयर करा रहा हूं एज हाउ कि कैसे आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर जीरो कंडीशनल की बात करें, यही क्लास में वापस लिखूंगा जो मैंने अभी लिखा था, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हो, खमा, एक क्लास दिया गया है, इसका दूसरा क्लास जो है वो आपको ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक तरीका है कि सवाल कैसे पूछा जा सकता है। कंडीशनल क्लास दिया गया है, रिजल्टेंट क्लास आपको ऐड करना है। अब रिजल्टेंट क्लास आप तभी ऐड करोगे जब आपकी समझ में आएगा कि ये कौन सा कंडीशनल है। क्या ये जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दैट्स जनरल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट कंडीशनल, विच वन टू विच कैटेगरी डज दिस पर्टिकुलर कंडीशनल सेंटेंस बिलोंग्स टू, कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसके बाद ही हम आंसर कर सकते हैं। फाइन, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करोगे, इसका मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट क्या है, आइस मेल्ट होगा। अब आपको देखना है कि ये जो रिजल्ट है क्या जनरली ट्रू है, क्या हम इस बात को मानते हैं कि अगर आइस को हीट करेंगे तो मेल्ट होगा, हाँ मानते हैं। सेकंड, क्या ये रिजल्ट मोस्ट लाइकली है, यानी हर हाल में होने वाला है, हाँ हर हाल में होने वाला है, ये मोस्ट लाइकली रिजल्ट दिखाता है। ऐसा रिजल्ट जिसके होने के चांसेस कितने हैं, 110%, तो ये जीरो कंडीशनल है। अब आपकी समझ में आया ये जीरो कंडीशनल है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपको यह भी पता है कि आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट होता है। तो आप क्या करोगे, यू विल ऐड सब्जेक्ट, आप रिजल्टेंट क्लास में सब्जेक्ट ऐड करोगे, प्लस उसके साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करोगे। सब्जेक्ट हम कहां से लाएंगे, हम किसकी बात करें, इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट व्हाट, आइस, आइस इट ऑब्जेक्ट, आइस, ये जो आइस है इसके साथ क्या होगा, आइस के साथ क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट की फर्स्ट फॉर्म इट मेल्ट्स। तो इस तरह से आपको इस कंडीशनल क्लास का रिजल्टेंट क्लास ऐड करना है कि कंडीशनल क्लास दिया गया था, रिजल्टेंट क्लास दिया हुआ नहीं था, वो हमने ऐड किया। इफ यू हीट आइस, खमा इट मेल्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, यही सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, यही स्टेटमेंट कुछ ऐसे आपके सामने रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट आइस, खमा इट विल मेल्ट। ओके फाइन, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पे जो कंडीशन रखी गई है उसका रिजल्ट 100% होने वाला है, यानी ये एक जीरो कंडीशनल है। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपको ढूंढनी है कि ये जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर यहां पे नहीं है। कैसे नहीं है, यहां पे आप देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है कंडीशनल क्लास में, ओके, यहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस है, नहीं यहां पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए। गर्ज ये कि यहां पे एक विल जो है, जो इस स्टेटमेंट को फ्यूचर बनाता है, फ्यूचर सिंपल बनाता है, इसे खत्म करेंगे, विल को ड्रॉप करेंगे, इट, इसके बाद मेल्ट के साथ एस ऐड कर लो, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, V1 के साथ एस ऐड किया हमने, इट मेल्ट्स, हो गया आपका स्टेटमेंट करेक्ट। अभी तक गलत था, अब आपका स्टेटमेंट स्टेटमेंट ठीक हो गया। तो आपको क्या करना है, कभी कभार यही स्टेटमेंट ऐसे दिया जाएगा कि स्ट्रक्चर गलत होगा, स्ट्रक्चर को आपको ठीक करना है। आपको इस बात का ख्याल रखना है, कंडीशनल क्लास भी प्रेजेंट सिंपल में होगा, रिजल्टेंट क्लास भी प्रेजेंट सिंपल में। यहां पे भी V1 होगा, नो ऑक्सिलरी वर्ब, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। यहां पे भी V1 होगा, नो ऑक्सिलरी, कोई ऑक्सिलरी नहीं होगा। फाइन, तो ऐसे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल लाइक टू लेट यू पीपल नो इज द फैक्ट दैट जीरो कंडीशनल का जो कंडीशनल क्लास है, हियर वी कैन यूज इफ एंड व्हेन इंटरचेंजेबली। इफ और व्हेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, यानी इफ से व्हेन को रिप्लेस कर सकते हैं, व्हेन से इफ को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इफ है इसके बदले व्हेन लिख सकते हैं, अगर व्हेन है तो इसके बदले इफ लिख सकते हैं। ये कंडीशनल क्लास के साथ होता है, हो सकता है, हम कर सकते हैं। कब, अगर हम बात कर रहे हैं एक जीरो कंडीशनल की, तो इफ एंड व्हेन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, हम इन्हें कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, हम इन्हें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट, तो अब आपको यह पता है कि जीरो कंडीशनल एक ऐसा सेंटेंस है दैट पुट्स फॉर द कंडीशन द रिजल्ट ऑफ विच हैपेंस टू बी ए ट्रुथ आर ए मोस्ट लाइकली रिजल्ट। कंडीशनल क्लास, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल क्लास होता है एक ऐसी कंडीशन रखता है जिसका रिजल्टेंट क्लास एक ऐसा रिजल्ट दिखाता है जो ट्रुथ होता है या जो मोस्ट लाइकली यानी गारंटीड होता है। नंबर 1। नंबर 2,
जीरो कंडीशनल में कंडीशनल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल यानी